सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 17 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले पेज पे हमारे सामने आने वाले आगामी चुनाव को लेकर खबर है। बहुत जल्द ही हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू और अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। असेंबली इलेक्शंस का वेट है, उसको लेके डेट्स आ गई हैं। जम्मू कश्मीर फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 अगस्त 20 से शुरू हो जाएंगे और सितंबर 12 तक जाएंगे। वहीं हरियाणा सितंबर 5 से सितंबर 12 सबकी निगाहें हैं। हम अपने आर्टिकल्स की ओर बढ़ेंगे बिना अपना समय गंवाए। मेकिंग इट राइट, ये आर्टिकल लिखा है कृष्ण कुमार जी द्वारा। It's like the proverbial unwilling horse. You can somehow take him to the pond, but cannot make him drink. Our system of elementary education had resisted compulsory universal enrollment for a century. And now, more than a decade had passed, RTE was promulgated, but the system continues to dither over its full implementation. बहुत ही अच्छी बात कही है कृष्ण कुमार जी द्वारा कि बहुत साल गुजर गए, सदी गुजर गई है राइट टू एजुकेशन होने के बाद भी सिस्टम स्कूलों तक बच्चों को नहीं पहुंचा पाया है और स्कूलों तक हमारा जो एनरोलमेंट है वहाँ आज भी हम कामयाब नहीं हो पाए हैं बच्चों को एनरोल करने से। The recent verdict given by the Bombay High Court indicates that kind of spanners that the state governments have thrown in the RTE's track. That court set aside a government order issued earlier this year. Through its order, the Maharashtra government attempted to circumvent a major provision that RTE offers to children of the poor section of society. This provision calls upon unaided private schools to reserve 1/4 of their seats for the poor. अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑर्डर लाई थी कि जो प्राइवेट वाले स्कूल है ना वो अपनी ना 1/4 सीटें रिजर्व रखें गरीब बच्चों के हिसाब से, गरीब बच्चों के लिए। ठीक है ना। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्डर सेट द प्राइवेट स्कूल नीड नॉट इम्प्लीमेंट दिस प्रोविजन इफ देयर इज अ गवर्नमेंट स्कूल इन डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। और प्राइवेट स्कूल को ये करने की ज़रूरत नहीं है अगर उनके ना आसपास 1 किलोमीटर के अंदर कोई सरकारी स्कूल है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। देखना कि तो ये कोई नियम थोड़ी होता है, नियम है यूनिफाइड। फिर तो पता लगा कि ए मान लीजिए चलिए ये वाला ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया, मान लीजिए ए प्राइवेट स्कूल है उसके पास कोई नहीं है और बी प्राइवेट स्कूल है उसके पास एक है गवर्नमेंट कॉलेज 1 किलोमीटर की रेंज में, तो ये भी तो इनइक्वालिटी हो गई ना। इनकी सीटें भी तो कम हो गई, इनकी सीटें अपनी प्राइवेट चलती रहेंगी। Maharashtra is the only state where the bureaucracy came up with a clever idea. The government gave two arguments in the support order. One was about resources. If they are being spent for providing easy access to government school, why should they duplicate it? The argument is rooted in the rule that government will reimburse a private school for the cost of enrolling a poor child. अच्छा, सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम आपसे 1/4 रिजर्व करने के लिए कह रही है, उसमें आपका पैसा मर जाएगा, हम पैसा देंगे आपको उस सीट का जितना फीस है रियम्बर्स करेंगे। The argument forward was the right to education itself. It was not absolute in the sense that other fundamental rights are. This logic is quite popular. What is surprising is that a state government is using it, thereby revealing its lack of commitment to law enacted by Parliament as a follow-up to a constitutional amendment. That the government of Maharashtra is not alone in the view of RTE as merely quasi fundamental rights indicates how difficult a journey awaits India's children in the search of justice. So when the RT was promulgated, it was expected to serve a conscience raiser. The idea of giving every child the right to be at school has waited for a long time. Gopal Krishna Gokhale tried to seek approval for it in the Imperial Legislative Assembly in 1911. He failed. मतलब ये इतिहास रहा है, मगर जिस हिसाब से चीज़ें दिख रही हैं ये मजाक लग रहा है। दिस प्रोविजन वॉज नाइदर अप्रिशिएटेड। यहाँ बेसिकली बात कर रहे हैं EWS के बारे में, है ना। यहाँ से पढ़ेंगे। दे
They offered a rich pedagogic picture of what our elementary school should be like. ठीक है. RTE turned the tenants' progressive pedagogy into law. Its greatest social gift was that mandated give to 60 children from different socioeconomic backgrounds. It did this by compelling private unaided school to allot one-fourth of the seats to children from economically weaker sections. Never before had such a bold measure been legislated to build long-term bridges in a stratified social order. This provision was neither appreciated nor understood. It jarred with the entrenched belief in social hierarchy. Private schools saw RTE as an intrusion and they sought legal and political help to avoid implementing the EWS reservation. आसान भाषा में प्राइवेट स्कूल्स ने ये कहा कि भैया ये जो हमारे क्षेत्र में गवर्नमेंट क्यों हस्तक्षेप कर रही है. अरे आपकी जिम्मेदारी है कि गरीब बच्चों को पढ़ाना और शिक्षा मुहैया कराना. आप पे करोड़ों के फंड होते हैं, है ना. आप क्यों हमारे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं इसमें. और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल भी कोई किसी की मदद नहीं करता है, बट प्राइवेट स्कूल की क्षमता होती है वो अपनी कैपेसिटी में रह के ही किसी की हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट चैरिटेबल, है ना. दे आर सोलली रनिंग ऑन द मनी दे आर अर्निंग. वहीं पे यू कैन सी ए कॉन्ट्रडिक्शन दैट गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग रूल्स फॉर द बेसिक नेसेसिटीज़. जैसे कुछ दिन पहले यूपी गवर्नमेंट का रूल आया था कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पीछे पड़ गए कि प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स को इलाज कराना पड़ेगा मरीजों का, और जो भी उसका खर्चा आएगा वो हम दे देंगे. मतलब कोई योजना में नहीं, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल को वो सेमी सरकारी मान के चल रहे थे कि अगर कोई मरीज आप पे आता है तो आप भी उसका इलाज करवाइए, है ना. प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ये कहा कि भैया हम लोग वैसे ही इतने कैश क्रंच रहते हैं और जिम्मेदारियों से भरे रहते हैं, हमारे पे इतना समय नहीं है कि हम गवर्नमेंट के पेशेंट्स को भी देखेंगे. दूसरी बात है जो रीएम्बर्समेंट टाइम और समय लगता है रीएम्बर्स होने में, हम कब तक वेट करेंगे पेमेंट्स आने का. इवन देखिए आयुष्मान भारत योजना में भी सबने देखा था साफ साफ कि हॉस्पिटल्स को पेमेंट्स बहुत लेट मिल रहे थे. तो सरकार अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे नहीं डाल सकती और किसी प्राइवेट एंटिटी पे बिल्कुल नहीं डाल सकती. According to modern pedagogic theory, mixing of children from different backgrounds enriches learning. Few private schools saw it that way. They invoked all kinds of dark portents, such as adjustment problems that EWS children would face. They missed noticing the potential RTE offered for an enriched classroom environment. The RTE's progress is far from reassuring amendments to the original act have dented several key aspects that were intended to make elementary education experientially deep for children across the socio-economic divide. About 15 years तो जस्टिस इवन देखिए जस्टिस वर्मा कमीशन ने भी इसको JS वर्मा कमीशन ने भी इस पर ध्यान दिया था. क्लियर कट गाइडलाइंस टू रिवैम्प टीचर ट्रेनिंग. Our system has ensured that interest in these guidelines would last long. Interest in RT itself has been waning for some time now. Bombay High Court verdict has cleared the air, where other states like Karnataka and Punjab also act on the verdict. In these states, a parent can apply for EWS category only if there is no government school within 1 kilometer distance. Punjab's injunction is bizarre. Only if parents can't get admission to government school can they take their children to private school and claim the EWS quota. An act that was designed to protect the children is now being used to enable private schools to exclude the poor with the state's help and convenience. तो ये असल में नियम में ही आप देखिए इनक्वालिटी है ना. या तो आपकी रेंज में अगर 1 किलोमीटर की रेंज में गवर्नमेंट स्कूल आ रहा है तो ये नियम लागू होगा या नहीं होगा. ऑन दी प्राइवेट साइड इसीलिए प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये चिंता का विषय है और यही कंसर्न पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए भी है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है
और वैसे भी RT सोली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कैसे नहीं है किसी रेंज में कोई गवर्नमेंट स्कूल, दे हैव टू इंश्योर दैट इट हैज़ टू बी देयर। बैक टू द पीपल, असेंबली इलेक्शंस आफ्टर अ डेकेड इन जम्मू एंड कश्मीर, इसमें नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल आर्टिकल रहेगा। बैड वेदर रिपोर्ट, डीलिंग विद अ वार्मिंग प्लानट विल रिक्वायर एड्रेसिंग knowledge gaps and correlating global, national, and local data. The National Oceanic and Atmospheric Administration latest data released on Thursday shows that world has experienced its hottest July ever recorded. The American Institute measurement differs slightly from the EU's Copernicus Observatory, which clocked last month as the second hottest July. मतलब वही गर्मी का डेटा निकालने की बात हो रही है, वार्मिंग हो रही है नहीं हो रही है। Climate modeling has traditionally been slow and reactive process, while such studies are by and large accurate in simulating global and nutritional national trends. They tend to underestimate the regional variations. ठीक है। One solution is to increase the number of meteorological sessions to monitor weather. अब वेदर मॉनिटरिंग में जो इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही हैं और जो अलग अलग कर किसी का डेटा आता है उसको एड्रेस करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जगह जगह पे मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस को अपॉइंट कर दें, उनके डेटा को कलेक्ट करें, उनके डेटा को कलेक्ट करके कैलकुलेट करें और उसके बाद हम एक यूनिफाइड एस्टिमेशन करा करें। वन सॉल्यूशन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशंस to monitor weather in different urban and rural zones in India. The center plans to set up a weather station in each panchayat to provide granular data on rainfall, frost and humidity. Another imperative is to develop information sharing mechanism और information share भी करा जाए within countries and across national borders. Several extreme weather events, including the recent Wayanad tragedy and the Pakistan flood of 2022, have underlined the urgency to correlate warming of seas with local climatic conditions. Scaling of projects under the UNFCCC's aegis, the decade-old Lima adaptation knowledge, तभी हम डेटा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ लोकल लेवल पे भी क्लाइमेट चेंज में हो रहे परिवर्तनों को अगर हम ट्रैक कर लेंगे, उसका फ़ायदा आने वाली ज्योग्राफिकल एडवर्सरीज से टैकल करने में मिलेगा। अगला इंडियाज फ्यूल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप शिफ्ट इंटायरली टू लॉन्ग रूट अराउंड अफ्रीका, और ये वाला आर्टिकल है कार्गो शिप्स पे जो होटी रेबेलियन का अटैक हो रहा है और रेड सी में चल रही असमानता को लेकर चैलेंजेस जो रेड सी फेस कर रहा है, with no signs of a let-up in threat to ship transiting the Red Sea. India's petroleum product exports to Europe have shifted entirely to the significantly longer and costlier route. As per ship tracking data, not even one Europe-bound fuel tanker that sailed from India in June and July took the Red Sea route, which used to be mainstay of the India export to Europe. दिक्कत ये है कि हम शायद यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि अब जहाज़ जो है रेड सी का रूट लेने की जगह लंबा रूट लेके जाना पसंद कर रहे हैं। हूटी रेबेलियंस यहाँ पे एक्टिव हैं, हमला, और ये बहुत ही एक्टिव रेबेलियंस ग्रुप हैं, मतलब आप इन्हें कोई हल्के में ना लें, इनके पास एडवांस मशीन्स, हेलीकॉप्टर, सब कुछ होता है। As since the last year, numerous cargo ships have come up under attack from the Iran-backed Houthi rebels of Yemen around the Bab el-Mandeb Strait, which leads to Red Sea and Suez Canal from the shortest, although narrow, route to the Mediterranean Sea. जैसे कि हम जानते हैं कि यही आपका रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में रास्ता है और शॉर्टेस्ट रास्ता कैनाल है, जिससे आप बहुत जल्दी यूरोपियन साइड की तरफ जा सकते हैं। As per trade sources, taking the Cape of Good Hope route instead of Suez Canal adds 15-20 days, और ये लंबा वाला रास्ता देने पे कम से कम 15 से 20 दिन का जर्नी आपका बढ़ जाता है।
ये कोई पसंद तो नहीं कर रहा है ऐसा करना, मगर दिक्कत ये आ गई है सुरक्षा की, है ना। खामखा जहाज़ ही ना बचे, इससे अच्छा है कि लंबा रूट लेके निकल जाओ। और ये अल्टीमेटली ना कॉस्ट आपकी जो प्रोडक्ट फाइनल जा रहा होता है उसमें भी बढ़ती है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और आस-पास के देशों को इस रेड सी रूट को सुरक्षित करने का ध्यान देना पड़ेगा। Asia is the market India is focusing on right now, and the Middle East has stepped in for Europe's petroleum products needs, mostly on the diesel and jet fuel side. With attacks on merchant vessels in and around the Red Sea intensifying in recent weeks amid growing concerns over the possibility of the Israel-Hamas conflict developing into a wider Middle Eastern crisis, with increasing involvement of Iran and other regional players, तो यहाँ पे जो है अशांति भारत के लिए भी एक चिंता का विषय रहने वाली है ना। अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, शिपिंग गोइंग ऑन इन दीस रूट्स, तो वो केप ऑफ गुड होप की तरफ बढ़ता ही जा रहा है मार्च से लेके अप्रैल तक। ये जो ब्लू इंडिकेटर आप देख रहे हैं केप ऑफ गुड होप का है, रेड इंडिकेटर आप देख रहे हैं ये रेड सुएज कैनाल का है। ये आपका बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम भी अपने आप को बड़ा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हब बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको सुरक्षा तो वहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी, साथ में अंतर्राष्ट्रीय अन्य राष्ट्रों की भी सहायता लेते हुए। अगला आर्टिकल है यहाँ पे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV इज़ अ न्यू कैटेगरी ऑफ लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल्स विद द यूज़ ऑफ कमर्शियल यूज़ के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे इसरो ने लॉन्च करा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन has launched the third developmental flight of the small satellite launch vehicle from the Satish Dhawan Space Center in the Sriharikota on Friday. This marks the completion of ISRO and Departmental of Space Development Project. ये होता क्या है, ये बेसिकली आपका 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल होता है, 3 सॉलिड propulsion स्टेजेस होती हैं इसमें, बहुत से लिक्विड propulsion बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल VTM होता है। Essentially, the aim behind SLV is to produce low-cost launch vehicles with short turnaround times and minimal infrastructure requirements. ये ना बजट भी कम इससे खर्च होगा और आपका और एफिशिएंट लॉन्च व्हीकल्स बनाने का हमारा टारगेट है। Before SSLV, a smaller payload had to be sent into space using other launch vehicles, carrying multiple bigger satellites. Smaller payloads were dependent upon the launch schedule of those satellites. मतलब देखिए पहले क्या हो रहा था कि अगर कोई सामान जाना है तो हमें ना बड़े वाले लॉन्च व्हीकल या आप समझ लो ट्रक, मान लीजिए कि कोई सामान जाना है और बड़ा ट्रक है, हाँ आपका सामान सिर्फ इतना छोटू सा है, ट्रक तभी जाएगा जब उसमें बड़ा बड़ा सामान इकट्ठा हो जाएगा, है ना। जब बड़ा बड़ा सामान इकट्ठा हो जाएगा मतलब वही उसकी आने आने का किराया भाड़ा बोलिए आप, वो निकल आएगा, वो तभी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपका सामान लेके चलाया जाएगा, ठीक है ना। अब उसके लिए जो आपका छोटू वाला सामान है इसे वेट करना पड़ेगा, ये ट्रक पहले पूरा भर जाए। सवारी ऐसी होती है ना, सवारी कब जाएगी बस आपकी, तो सवारी भर जाएगी। अब क्या होगा, जो SSLV हमने लॉन्च करे हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आप समझ लीजिए मैजिक है। अब क्या होगा कि जो छोटा छोटा सामान है अगर वो भी इकट्ठा हो जा रहा है या नहीं भी हो रहा है तो वो सामान को लेके चला जाएगा, है ना। पहले स्मॉलर पेलोड्स को वेट करना पड़ता था कि वह लॉन्च होके बड़े कंसाइनमेंट्स के साथ जाएं, बड़े पेलोड जब जाएंगे उनका वेट करें कब शेड्यूलिंग हुई है, कब रॉकेट लॉन्च करने की बात हुई है। अब अच्छी बात है कि इसका निर्माण होने से ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा और इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी में ही। ISRO has earlier launched payloads using the Polar Satellite Launch Vehicle PSLVs and the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle GSLVs. PSLVs are the third generation of India's satellite launch vehicles, first used in 1994. More than 50 successful PSLV launches have taken place to date. और 50 से ज़्यादा PSLV लॉन्च व्हीकल हम अभियान कर चुके हैं। और PSLV तो क्या उसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है PSLV को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एक स्टडी है आर्टिफिशियल लाइटनिंग और इंसेक्ट्स को लेकर। आर्टिफिशियल लाइट विच इन ऑल नाइट जस्ट स्ट्रीट लाइट्स कैन मेक लीव्स ग्रो so tough that insects cannot eat them.
which could threaten urban food chains according to study. Frontier in Plant Science में ही छपी है. To carry out the study, the researchers focused on two common species of street trees in Beijing, Japanese pagoda and the green ash trees. They picked 30 sampling sites on main roads that are usually lit by street lights all night. The researchers then measured the luminescence, the amount of light at each site, and collected around 5,500 leaves to evaluate the impact. मतलब आर्टिफिशियल लाइटनिंग से क्या हो रहा है, जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह हैं, ऐश बुशेस हैं, ट्रीज़ हैं, इनकी ग्रोथ में परिवर्तन देखा गया है. If the leaves were larger, it would mean that plants directed their resources. Researchers observed that both species of trees, the higher the levels of luminance, the tougher the leaves. Moreover, मतलब लीव्स को क्या लग रहा है कि रोशनी आ रही है, तो वो तो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पूरी कर रही है ना, इससे टफर लीव्स बनती जा रही हैं. दे ऑल्सो नोटेड दैट आर्टिफिशियल लाइट्स आर अल्टर्ड द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल डिफेंस कंपाउंड्स इन द लीव्स. तो ये आर्टिफिशियल लाइटनिंग से ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिससे जो हमारी लोकल फूड चेन है उसमें भी दिक्कतें आने वाली हैं, है ना. बाकी अच्छे से रखते हैं. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. क्विक एनालिसिस में जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है. बाकी अखबार का पूरा अध्ययन आप खुद पे करिएगा. हमारा मेन लक्ष्य ये है कि जिन छात्रों को अखबार पढ़ने से डर सा लगता है कि कैसे पढ़ें इतना बड़ा अखबार, थोड़ा सा ओवरव्यू देखने के बाद आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा और आप भी अखबार को पढ़ना शुरू कर देंगे. पूरा एनालिसिस हम नहीं करते हैं, कारण ये होता है कि अगर सारा काम आपको परोस के दे दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे. और यही चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस समय यूट्यूब पे, कि पूरा एनालिसिस पूरा परोस दिया जा रहा है, जिससे बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है. थोड़ा यहाँ से देखिए, थोड़ा खुद से पढ़िए, खुद से अध्ययन करिए, रिसर्च करिए. आपका जो अल्टीमेट गोल है नॉलेज लेने का, वो पूरा हो जाएगा. बाकी हमारा प्रयास ये रहता है कि वीडियो को छोटा रखें ताकि आपको भी टाइम किल ना हो. घंटों वीडियो में कोई फ़ायदा होता नहीं है. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे.